Hello students, मैं हूँ सी श्रुति गोयल and welcome to Current Professional Academy. Today we are doing Chapter 8, Unit 1, Introduction to Partnership Accounts. And till date we have done till illustration 4, and now we'll start with the fixed and fluctuating capital concept in this lecture. So let's start. Point 1.9, fixed and fluctuating capital. Till now, till illustration 4, we have made capital account for partners. Like look at illustration 4. A is capital account and B is capital account. Here, whatever capital being introduced by the partner is written on credit side by bank, and further adjustment like interest on capital, interest on drawing, all has been done in the same account. That is, introduction of capital is written in same account, and further transaction also are written in the same capital account. No further any other capital account is being prepared. Only one capital account is being prepared, one capital account, and all adjustment is in that account only. Due to that, capital balance of capital introduced get fluctuate, balance of capital introduced get fluctuated. ओपनिंग बैलेंस कुछ और होगा, देन हमने उसमें प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा एडजस्ट किया, and at last balance will be different. So this concept is called fluctuating capital. Suppose we have another option, that is fixed capital method. Fixed capital method में क्या होता है? Fixed capital method में will prepare a fixed capital account in which only introduction and withdrawal, permanent introduction and permanent withdrawal will be entered. Like bank account में capital introduced 30,000 and then balance will be 30,000. No change. This introduction will be fixed. Fixed amount will be shown every time unless otherwise some new capital is being introduced or some capital is withdrawn. And but we have to adjust transactions like interest on capital, interest on drawing, profit sharing and all. तो वो कहाँ पे adjust करेंगे? For that we create another account called current account. Two types of capital account. One is fixed and another one is current. In this we will adjust P&L adjustment account, interest on capital, interest on drawing, etc. And hence balance will be of current capital account. So fixed capital method में क्या होते हैं कि एक fixed capital account होते हैं जिसमें केवल capital, permanent introduction and permanent withdrawal is being adjusted. All other transactions, कोई profit है, जो day to day जो सैलरी मिल रही है, रेम्यूनरेशन है, इंटरेस्ट है, वो करंट अकाउंट में एडजस्ट किए जाते हैं. इस तरीके से दो कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ते हैं इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड. नाउ कम टू द योर स्टडी मटेरियल. यू हैव सीन इन द अबव एग्जांपल, दैट इज इलस्ट्रेशन 4. कैपिटल अकाउंट ऑफ ए हैज चेंज्ड फ्रॉम 30,000 एट द बिगिनिंग टू 33800 एंड बी का भी 20,000 से 23,200. क्यों? क्योंकि हमने ये सारी एंट्रीज एक ही कैपिटल अकाउंट में बनाई हैं. लेकिन इफ द कैपिटल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड ऑन दिस बेसिस, कैपिटल इज सेड टू बी फ्लक्चुएटिंग. क्यों? क्योंकि बैलेंस चेंज होते रहता है. सम फर्म्स, कुछ फर्म हाउएवर प्रेफर टू कंटिन्यू टू शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एट द सेम ओल्ड फिगर. जो इंट्रोड्यूस्ड हुई है कैपिटल उसको उसी फिगर पे शो करना चाहते हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहते कुछ फर्म्स. लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वेदर इट इज फिक्स्ड और वेदर इट इज फ्लक्चुएटिंग, तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे, एक ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसी में एडजस्ट करेंगे. और अगर बोला है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, देन ओनली वी विल क्रिएट फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट अकाउंट. अदरवाइज ओनली वन कैपिटल अकाउंट विल बी क्रिएटेड. This means that no entry to be made in the capital account in second method, fixed capital method. इसमें इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग एटसेट्रा नो एंट्री विल बी मेड. इसलिए सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, इसका क्या नाम है? करंट अकाउंट. इस तरीके से टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड. In fixed capital method, generally initial capital contribution by the partners are credited to partners capital account like here we have done, and all subsequent events and transactions are dealt through current account.
unless a decision is taken to change it initial capital and balance is not changed. इस तरीके से बैलेंस चेंज नहीं होता unless otherwise कोई परमानेंट इंट्रोडक्शन या विड्रॉल है जिसको मेंशन किया गया कि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनेगा. एंड फ्लक्चुएटिंग में तो इन जनरल जैसे अभी तक हमने एंट्री की है कि इंट्रोडक्शन होगा देन जो भी चेंजेस होंगे इन सेम अकाउंट वो होंगे. तो दिस इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, सॉरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अब ये हम कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट पूरा लर्न कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होता है कैपिटल अकाउंट का, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी होता है. तो बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंड दैट इज रिटन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. वो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कोई भी मेथड हो सकता है. द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. वी हैव सीन इन अर्लियर लेक्चर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंपल्सरी नहीं होता है. ना तो फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करती है ना ड्रॉइंग पे चार्ज करती है. बट इफ रिटन इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इफ रिटन इन पार्टनरशिप डीड, एनी ऑफ दिस थिंग इफ रिटन इन पार्टनरशिप डीड, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का प्रोविजन किया जाएगा. तो इफ रिटन तो व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट एंड हाउ दिस इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड, ये हम यहाँ पे देखेंगे. A partner is not entitled to interest on his capital as a matter of right, but if there is an agreement, the partner would receive interest on capital and it is paid at agreed rate only out of profit. If there is loss, if loss है तो no interest on capital will be paid. Matter of right किस में होता है, अगर पार्टनर ने लोन दिया है, कैपिटल इन्वेस्ट की है तो उस पर इंटरेस्ट मिलना पार्टनर का राइट नहीं होता. इफ पार्टनर इज गिवन लोन टू द फर्म तो उस पर इंटरेस्ट मिलना होता है पार्टनर का राइट, बट नॉट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और ये आउट ऑफ प्रॉफिट ही मिलेगा. केवल अगर लॉस हो रहा है कंपनी को तो इवन इफ रिटन इन द पार्टनरशिप डीड तो भी कोई भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं होगा ऑन कैपिटल. इट कैन बी पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट. द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या एंट्री होगी? Interest on capital account debit to partners capital account, ये हो गया फर्स्ट एंट्री. एंड सेकेंड P&L adjustment account, sorry P&L appropriation account debit P&L appropriation account debit to इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये कहाँ पे चार्ज होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में. ये सब पार्टनर्स की प्रॉफिट जो अल्टीमेटली फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है वो पार्टनर्स को डिवाइड करने के लिए है. इसलिए इसको P&L अकाउंट में ना करके P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट फर्म को हो चुका है वही अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, अप्रोप्रिएट किया जा रहा है. सो इट इज बीइंग डन थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ना कि नेट प्रॉफिट वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं वो पार्टनर्स को जो भी मिलता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, तो ये दो एंट्री होगी. क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ चल जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन में. अल्टरनेटिवली वन सिंगल एंट्री कैन बी डन. व्हाट? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डायरेक्टली डेबिट करो. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीधे, और नरेशन में लिख दिया बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% और वॉट एवर बी द परसेंट रेट बीइंग गिवन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड इट इज सो सिंपल. नाउ ये तो हो गया कि जर्नल एंट्री कैसे होगी. जनरली वी विल फॉलो दिस अल्टरनेट मेथड ऑफ सिंगल एंट्री, और दो एंट्री नहीं करेंगे. तो क्या एंट्री हो जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड नाउ वी विल सी कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होगा. ओके, टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पहले देखना पड़ता है कि वो कितने पीरियड के लिए पार्टनर की कैपिटल रही है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पीरियड वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दैट इज अगर कोई कैपिटल 12 मंथ्स के लिए है तो वो 12 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे. लाइक रेट विल बी रिटन लाइक rate of interest will be written like 10% per annum. तो यहाँ पे पर एनम का क्या मतलब होता है कि अगर एक साल वो कैपिटल रही है
तो 1 साल का इंटरेस्ट होगा 10%। इफ दैट कैपिटल इज रिमेनिंग फॉर 6 मंथ ओनली इन द फॉर्म, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट देंगे। 10% किसके लिए? पूरे 12 मंथ्स के लिए। अगर पूरे 12 मंथ रही है तो 10%, तो 6 मंथ रही है तो कितना? 10% इंटू 6/12। इस तरीके से जितने मंथ या जितने पीरियड के लिए, जितने डेज के लिए कैपिटल बिजनेस में रही है, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट। इसके लिए 2 मेथड हो सकते हैं। मेथड 1 इज सिंपल मेथड एंड मेथड 2 इज प्रोडक्ट मेथड, जिसके थ्रू पहले हम इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है? वी कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल, एंड इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद उस पर फिर जो भी प्रोडक्ट का आंसर आता है उस पर हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। एंड यहाँ पे नोट देखिए, नेट लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने अभी बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। अगर लॉस है तो प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओनली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कोई वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। सो इफ देयर इज नो प्रॉफिट देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। बट व्हाट इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट? In case of insufficient profit, the amount of profit is distributed in the ratio of capital as partners get profit by way of interest on capital only. अगर प्रॉफिट कम है तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, देन बचा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा नहीं मिल पाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। तो व्हाट वी विल डू, जो इफेक्टिव कैपिटल आएगी, अभी हम प्रोडक्ट मेथड में देखेंगे इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसी प्रपोर्शन में ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी रेशियो में बढ़ जाए। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देते हैं? ऑन व्हाट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज बीइंग चार्ज्ड? ऑन इफेक्टिव कैपिटल या कैपिटल। सो इफ वी विल डिस्ट्रीब्यूट टू द इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट, जो है इनसफिशिएंट प्रॉफिट जो है, उसे अगर हम कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट एज इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो आपको ये याद रखना है कि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ही पहले देते हैं, और इसका ट्रीटमेंट करने के लिए कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो जो भी प्रॉफिट है वो उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, पहले सिंपल मेथड से एंड देन प्रोडक्ट मेथड से आफ्टर कैलकुलेटिंग इफेक्टिव कैपिटल। शिल्पा एंड संजू आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹1 lakh and 1,60,000 ऑन January 1, 2016 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? एक है शिल्पा, एक है संजू, और 1 जनवरी 2016 को शिल्पा की कैपिटल है 1 लाख एंड संजू की कैपिटल है 1,60,000। And now Shilpa introduced additional capital of 30,000 on July 1, 2016. 1 जुलाई 2016 को शिल्पा ने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की? 30,000। तो अब 1 जुलाई 16 को शिल्पा की टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 1,30,000। लेकिन संजू की कितनी रही? 1,60,000 ही, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये 130 कहाँ से आ गया? 1 lakh older capital and new introduced capital being 30,000 and another 20,000 on October 31st 2016। October 31st को हम 1 नवंबर लिख सकते हैं, 1 नवंबर 2016 को 20,000 और इंट्रोड्यूस की, मतलब टोटल कितनी होगी? 1,50,000। ये 1,50,000 कहाँ से आया? 1,30,000 प्लस 20,000। जबकि संजू ने कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की, उसकी कैपिटल हमेशा कितनी है? पूरे साल भर 1,60,000 ही है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 2016। मतलब यहाँ पे क्या है? जनवरी टू दिसंबर का फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, यानी हमको 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट रेट क्या है? 9% पर एनम
मतलब 12 मंथ की के लिए 9% और उससे कम या ज़्यादा मंथ है तो अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली हमको एडजस्ट करना है। तो देखिए शिल्पा की कैपिटल 1 लाख कब से कब तक रही, 1 जनवरी 16 से 1 जुलाई 2016 तक, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 6 मंथ तक 1 लाख रही। फॉर 6 मंथ इट इज 1 लाख। एंड देन जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 मंथ्स, 4 मंथ के लिए कितनी रही, 1,30,000। एंड देन नवंबर एंड दिसंबर 2 मंथ्स के लिए कितनी रही, 1,50,000। और संजू की कैपिटल पूरे 12 मंथ्स के लिए रही 1,60,000 ओनली। तो अगर हम सिंपल मेथड से कैलकुलेट करते हैं, सिंपल मेथड से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 लाख रुपीज कितने मंथ के लिए रही, इंटू 6 मंथ के लिए, तो इंटू 6/12 इंटू 9/100 एंड देन अमाउंट विल बी 1 लाख इंटू 9% इंटू 6 डिवाइड बाई 12। ये पहला चेंजेस, जब भी चेंजेस आता है उतने मंथ तक कैलकुलेट करेंगे और चेंज को बाद में कंसिडर करते हुए फिर नेक्स्ट चेंज तक के मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ये गया 4500, फिर कितना 1,30,000 रही फॉर 4 मंथ्स, तो 4/12 इंटू 9/100, 1,30,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 इंटू 9%, that is 3,900 rupees। एंड नाउ थर्ड नंबर पे 1,50,000 हो गई, 1,50,000 कितने मंथ के लिए रहे, इंटू 2/12 इंटू 9/100, 1,50,000 इंटू 9% डिवाइड बाई 12 इंटू 2, 2,250। अब अगर हम तीनों का सम करेंगे दैट इज 45। सो टोटल इंटरेस्ट ऑफ शिल्पा, टोटल ऑफ शिल्पा का 4,500 प्लस 3,900 प्लस 2,250, ये हो गया 10,650। आपके बुक में थोड़े अलग तरीके से सॉल्व किया बट आंसर विल बी सेम। बुक में क्या किया है, लाइक 1 लाख फॉर एंटायर 12 मंथ्स, देन 30,000 फॉर 6 मंथ एंड 20,000 फॉर 2 मंथ्स। तो आप ये मेथड ना फॉलो करके ये चार्ट जो मैंने बताया वो करेंगे, दैट विल बी इजियर। दोनों में सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ना बुक का मेथड गलत है जो मैंने मेथड बताया वो गलत है। बट आप अगर ये मेथड लेके चलेंगे तो ये आगे हमेशा कॉन्सेप्ट समझने में इजी होगा। दैट्स वाई मैं इस कॉन्सेप्ट से बता रही हूँ। बुक में क्या किया है, 1 लाख रहा है पूरे 12 मंथ के लिए, तो 1 लाख लिया है 12 मंथ के लिए, देन 30,000 आफ्टर 6 मंथ इंट्रोड्यूस हुआ एंड पूरे 6 मंथ तक चला, रिमेनिंग 6 मंथ के लिए, इससे 30,000 को लिया 6 मंथ के लिए एंड देन 20,000 रहा, इंट्रोड्यूस कब हुआ, नवंबर में, तो नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स के लिए रहा, इसलिए 20,000 2 मंथ्स के लिए। और हमने ऐड करके टोटल कैपिटल के बेसिस पे किया, इसने इंडिविजुअली जो कैपिटल हुई है उसके बेसिस पे किया है। तो अगर ड्रॉल इंट्रोडक्शन दोनों भी हो तो मैंने जो आपको मेथड बताया कि कितने मंथ के लिए टोटल कैपिटल, उसको इंडिविजुअली करने की बजाय टोटल कितनी कैपिटल कितने मंथ के लिए कितनी रही, लाइक 1 लाख फॉर 6 मंथ, 1,30,000 फॉर रिमेनिंग 4 मंथ एंड फॉर रिमेनिंग 2 मंथ इट्स 1,50,000। दिस मेथड विल बी इजियर एंड हमेशा काम आएगा। इसको आपको ये कॉन्सेप्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया दैट विल बी एवरग्रीन, आपको हमेशा कहीं भी आप इसमें फंसेंगे नहीं, कभी भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी मेथड से आप हमेशा कर सकते हैं। इन केस ऑफ बीच में ड्राइंग भी होती है तो भी आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से काम आएगा। सो प्लीज़ फॉलो दिस मेथड, बुक में देख के कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट है संजू की कैपिटल पे इंटरेस्ट। संजू कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या होगा, संजू की कैपिटल तो 1,60,000 थी, 1,60,000 फॉर एंटायर ईयर, दैट इज फॉर 12/12 मंथ्स फॉर एंटायर 12 मंथ, तो इंटू 12/12 इंटू 9/100, 1,60,000 इंटू 9%, 14,000 एंड
400, दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ संजू, बिकॉज इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. फॉर एंटायर मंथ कैपिटल वॉज 1,60,000 ओनली, सो देयर इज नो चेंज एंड सिंपली 1,60,000 इंटू 9% कर दिया, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा. नाउ मेथड 2, प्रोडक्ट मेथड इसमें भी बुक से थोड़ा अलग है, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा इजी होगा. प्रोडक्ट मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल. सबसे पहले कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल, या जो कैपिटल है उसको हम मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं. सबसे पहले इफेक्टिव कैपिटल, सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं संजू की, देन विल लर्न अबाउट शिल्पा. संजू की इफेक्टिव कैपिटल, संजूज इफेक्टिव कैपिटल, इसके लिए बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना है संजू का, 1,60,000. नंबर ऑफ मंथ 1,60,000 कितने मंथ के लिए रहा, 12 मंथ के लिए. तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, 1,60,000 इंटू 12, दैट इज 19,20,000. यही हो गई इफेक्टिव कैपिटल ऑफ संजू. अब इस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो भी प्रोडक्ट आया है वो डिवाइड बाई 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 19,20,000. अब इसको हमने क्या किया, मंथ में कन्वर्ट कर दिया. 90,20,000 फॉर 1 मंथ, तो इंटू 1/12 या डिवाइड बाई 12 इंटू 9/100, तो आंसर विल बी सेम 14,400 रुपीज. पहले क्या हम बोले थे, 1,60,000 फॉर 12 मंथ्स, 1,60,000 12 मंथ के लिए रहा, यानी 1 मंथ के लिए कितना रहा. ये प्रोडक्ट क्या बताते हैं, कैपिटल कितनी रही फॉर 1 मंथ. अगर 1,60,000 थी 12 मंथ के लिए, तो 1 मंथ के लिए वो क्या हो गई, 1,60,000 इंटू 12, दैट इज 19,20,000. ये क्या हुआ, बैलेंस ऑफ कैपिटल इंटू नंबर ऑफ मंथ किया, तो प्रोडक्ट मेथड से आ गया फॉर 1 मंथ कितनी कैपिटल है. अगर 19,20,000, 19,20,000 इज फॉर 1 मंथ, तो इसलिए 1 मंथ पे जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इंटू 1/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ विल कैलकुलेट ऑफ शिल्पा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. शिल्पास इफेक्टिव कैपिटल, शिल्पा की इफेक्टिव कैपिटल हम देखते हैं यहाँ पे. शिल्पास इफेक्टिव कैपिटल, सबसे पहले तो बैलेंस ऑफ कैपिटल, वो बैलेंस कितने मंथ के लिए रहा, इसके लिए नंबर ऑफ मंथ, एंड फिर ये ए दे दिए, ये बी दे दिए. नेक्स्ट विल बी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए इंटू बी कितना होगा, तो बैलेंस ऑफ कैपिटल देखिए 1 लाख कितने मंथ के लिए रहा, हमने ऊपर में देखा 1 लाख फॉर 6 मंथ्स, तो 1 मंथ. अगर 1 लाख 6 मंथ के लिए, तो 1 मंथ के लिए कितना हो गया, 1 लाख इंटू 6 लाख फॉर 1 मंथ. एंड नाउ 1,30,000 कितने मंथ के लिए रहा, नेक्स्ट 4 मंथ के लिए, तो 1,30,000 इंटू 4, रिमेनिंग 4 मंथ के लिए 1,30,000. तो अगर 1,30,000 रहा 4 मंथ्स के लिए, तो 1 मंथ के लिए कितना हो गया, 1,30,000 इंटू 4 आ गया 5,20,000. देन रिमेनिंग 2 मंथ्स के लिए कितना रहा, 1,50,000. अगर 1,50,000 2 मंथ के लिए, तो 1 मंथ के लिए कितना हो गया, 3 लाख. 1,50,000 इंटू 2. अब देखिए ये जो नंबर ऑफ मंथ आपने लिखा है, हमेशा उसका टोटल आना चाहिए 12. अगर ये 12 नहीं है, मतलब आपने कुछ गलत किया है. 6 + 4 = 10 एंड 10 + 2 = 12. देखिए यहाँ पे हमने जब संजू का भी कैलकुलेट किया, तो टोटल नंबर ऑफ मंथ 12 आया. क्यों, क्योंकि हम एनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब हम एनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज फॉर 12 मंथ्स. 6 मंथ के लिए 6 लाख, 6 मंथ्स के लिए यानी 6 मंथ के 1 मंथ के लिए 6 लाख, रिमेनिंग 4 के लिए 130 थी, तो 1 के लिए 520, एंड देन रिमेनिंग 2 मंथ के लिए क्योंकि 150 थी, तो वो 1 मंथ के लिए हो गई 3 लाख. तो टोटल 12 मंथ्स के लिए टोटल कैपिटल जैसे संजू की आई थी 19,20,000, उस तरीके से अब देखते हैं शिल्पा कितनी है, 6 लाख.
plus 5,20,000 plus 3 lakh, that is 14,20,000. Now what we will do, 14,20,000 is for 1 month. टोटली 12 मंथ्स के हिसाब से हमने कैलकुलेट करके प्रोडक्ट मेथड से इफेक्टिव कैपिटल कितनी निकाली फॉर 1 मंथ, 14,20,000 एट द रेट ऑफ 9%. लेकिन ये कितने मंथ की कैपिटल है, केवल 1 मंथ की, तो इंटू 1/12 इंटू 9% एंड डिवाइड बाई 12, 10650. देखिए हमने सिंपल मेथड से किया या प्रोडक्ट मेथड से किया, आंसर दोनों मेथड में दोनों पार्टनर्स का सेम आया है. मीन्स देयर इज चेंज इन मेथड ओनली. कोई भी दिक्कत नहीं है, आप किसी भी मेथड से कीजिए. प्रोडक्ट मेथड में बस क्या करते हैं, वो कैपिटल जितने भी मंथ के लिए रही उतने मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो दैट कैपिटल फॉर 1 मंथ पता चल जाता है कि टोटल मल्टीप्लाई होगा 12 से. देखिए यहाँ पे जब सम करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स का तो 12 मंथ्स, तो हर मंथ कितनी कितनी कैपिटल रही है और इफेक्टिवली फॉर 1 मंथ वो पार्टनर ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है वो पता चल जाता है. एंड इन दिस वे आसानी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जा सकता है. सो ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है. नाउ 1.9.2 हम बाद में करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे 1.9.2 के पहले देखिए 1.9.4 कैपिटल रेशियो. अभी हमने एक कॉन्सेप्ट में क्या देखा कि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाए. तो ये कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें यही इफेक्टिव कैपिटल, प्रोडक्ट मेथड वाली इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करनी. इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करनी है कैसे, कि कितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए कितनी कैपिटल हुई है, और जब फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर 1 मंथ वो कैपिटल पता चलती है. एंड दैट इज इफेक्टिव कैपिटल. और उसी रेशियो में हम उसी रेशियो को कैपिटल रेशियो अज्यूम करते हैं. कम टू 1.9.4, पार्टनर्स में एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. तो कैपिटल का क्या रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, थ्रू इफेक्टिव कैपिटल. व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बैलेंस फिक्स्ड कैपिटल के अकाउंट में दिख रहा है विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ गिवन कैपिटल, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस सेम होता है. लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस फ्लक्चुएट होते रहता है. तो इन दैट केस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम इफेक्टिव कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड हम इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. वेट किसका देंगे, नंबर ऑफ मंथ्स का. वी विल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स and in that manner effective capital or weighted average capital will be calculated. For example, A and B formed a partnership with capital contribution of 50,000 and 60,000 on 1st January. देखिए यहाँ पे A and B 1st January 2016 को उनकी कैपिटल कितनी है, A की है 50,000 एंड B की कैपिटल है 30,000 रेस्पेक्टिवली. प्रॉफिट वेयर टू बी शेयर्ड इन द कैपिटल रेशियो. अब कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले देखनी पड़ेगी कि कब कब कितनी कितनी कैपिटल रही है. कैलकुलेट द कैपिटल रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स. सबसे पहली डेट कौन सी, 31 मार्च 2016. उसको मान लेंगे 1 अप्रैल 2016. दैट इज गैप ऑफ 3 मंथ्स. ये 3 मंथ्स के गैप में कैपिटल चेंज हो रही है. ए ने इंट्रोड्यूस किए 5,000, मतलब 50,000 पहले से थी, 5,000 और इंट्रोड्यूस कर दी, तो ए की कैपिटल कितनी हो गई, 1,416 को 55,000. एंड देन बी ने क्या किया, कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं किया, कैपिटल विड्रॉन. ए ने विड्रॉ नहीं किया, बी ने विड्रॉ किया 2,000. मतलब ए की कैपिटल 30,000 थी, उसने 2,000 विड्रॉ कर लिया, तो कितनी कैपिटल बची देन, 28,000 कैपिटल रिमेनिंग ऑफ बी. नाउ 1 जुलाई को फिर से चेंज हुआ है. 1 जुलाई 2016 को क्या चेंजेस हुए, कितने मंथ हो गए, अप्रैल मई जून. आफ्टर 3 मंथ अगेन अनदर चेंज इन द कैपिटल इज हैपेंड. क्या हुआ है, 1 जुलाई को बी ने इंट्रोड्यूस किया है 9,000. बी की ऑलरेडी कितनी कैपिटल थी, 28,000. उसने 9,000 और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो कितनी कैपिटल हो गई, 37,000. बी हैज इंट्रोड्यूस्ड 9,000, सो टोटल कैपिटल ऑफ बी बीइंग
37,000. सो 1 जुलाई को ए ने कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया. कैपिटल विड्रॉन में 1 जुलाई को ए हैज विड्रॉन 3,000. पहले से ए की कैपिटल कितनी थी? 55,000. देन ही हैज विड्रॉन 3,000. तो कितनी कैपिटल बची अब ए की? 52,000. नेक्स्ट चेंज कब है? 1 सितंबर 2016. मतलब ये कैपिटल ये कितने दिन तक रही? जुलाई एंड ऑगस्ट ओनली. दैट इज फॉर 2 months. ओनली 2 months. 1 सितंबर को जो चेंज हुआ है दैट इज ओनली फॉर 2 months. ओके. 52,000 कितने मंथ्स के लिए रही? 2,000 के लिए की. और बी की 37,000 कितने मंथ्स के लिए रही? 2 months के लिए ओनली. नाउ व्हाट नेक्स्ट? 1 सितंबर को क्या हुआ? ए ने इंट्रोड्यूस किया 5500. तो लास्ट कैपिटल थी ए की 52,000, इंट्रोड्यूस्ड 5500 प्लस कर देंगे तो 57,500 हो गई ए की कैपिटल ऑन 1 सितंबर 2016. एंड बी ने क्या किया? इंट्रोडक्शन नहीं किया, विड्रॉन किया, 1,000 का विड्रॉल किया. तो ए बी की कैपिटल ऑलरेडी थी 37,000. 1,000 का विड्रॉल कर लिया. तो 1 सितंबर को हो गई बी की कैपिटल 36,000. नाउ ऑन 1 नवंबर 2016. कितने मंथ्स के बाद? दैट इज अगेन आफ्टर 2 months. सितंबर अक्टूबर 2 मंथ तक ये कैपिटल रही. देन अगेन चेंज्ड आफ्टर 2 months. 1 नवंबर को ए ने कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, बी ने इंट्रोड्यूस किया 4,000. तो बी की कैपिटल 36,000 थी, इसमें 4,000 और इंट्रोड्यूस किया तो कितनी हो गई? 40,000. एंड देन ए ने विड्रॉ किया 4,500. बी ने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया. ए की कैपिटल थी 57,500 जिसमें से ए ने विड्रॉ किया 4,500. तो बैलेंस ऑफ कैपिटल इज 53,000. नाउ ये 53,000 और 40,000 कब तक रहेगी? 31 दिसंबर 2016 तक. दैट इज फॉर रिमेनिंग 2 months नवंबर एंड दिसंबर. मतलब यहाँ पे ए का देखेंगे तो 50,000 3 month के लिए, 55,000 नेक्स्ट 3 month के लिए, 52,000 2 month के लिए, फिर 57,500 2 months के लिए एंड फिर 53,000 रिमेनिंग 2 months के लिए. एंड इन द सेम मैनर बी का भी. तो ये तो हमें पता चल गया कि कितने कितने मंथ्स के लिए कितना कितना बैलेंस रहा. नाउ अगर हम इनको वेट देते हैं, इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस, यहाँ पे वेट जो भी देना है, वेट बोलिए या नंबर ऑफ मंथ्स जिनका टोटल एट लास्ट कितना होना चाहिए? 12. तभी आपने सही किया है वरना गड़बड़ कर दी. एंड देन प्रोडक्ट. तो देखिए बैलेंस कितना है ए का? 50,000 for 3 months, 55,000 for 3 months, 52,000 for next 2 months, 57,500 for next 2 months and 53,000 for next 2 months. नंबर ऑफ मंथ्स को टोटल क्या करेंगे? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. टोटल 12 मंथ्स हो गए. अब प्रोडक्ट देखते हैं. प्रोडक्ट 1,50,000, 1,65,000, 1,04,000, 1,15,000 एंड 1,06,000. जब ये टोटल करते हैं तो टोटल विल बी 6,40,000. दिस इज इफेक्टिव कैपिटल. इन द सेम मैनर बी का भी करेंगे. बी की कैपिटल कितनी कितनी रही है? 30,000 फॉर 3 months, 28 फॉर 3 months, 37 फॉर 2 months एंड 36 फॉर 2 months एंड देन नेक्स्ट 40 फॉर 2 months. टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स का करेंगे तो कितना आएगा? 12. ये 12 नहीं आ रहा है मतलब आपने कुछ गलती की है, और ये 12 आ रहा है मतलब सही है. एंड देन प्रोडक्ट के बेसिस पे बी की कैपिटल का टोटल कितना हो गया? बी की कैपिटल का टोटल हुआ 4 लाख रुपीज. ए की कैपिटल हो रही थी टोटल 6,40,000 एंड बी की कैपिटल हो रही थी टोटल कितनी? 4 लाख. सो रेशियो कैपिटल रेशियो क्या हो गया? कैपिटल रेशियो इज 64:40. 64:40 हो गया. ठीक है. अब इसको हम अगर
थोड़ा नॉर्मल करते, थोड़ा रिड्यूस करते तो हो जाएगा रेशियो विल बी 8:5. 8 8 जा 64 एंड 5 8 जा 40. सो न्यू रेशियो विल बी 8:5. इस रेशियो में ये कैलकुलेट हो जाएगा. कैपिटल रेशियो एंड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 8:5, that is capital ratio. This is calculated capital ratio. हमने कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट किया, कितनी कैपिटल कितने मंथ के लिए ये देखा. प्लस अगर कुछ इंट्रोडक्शन है तो प्लस किया और कुछ विड्रॉल है तो वो माइनस किया. इन दिस वे हमें पता चला कि इफेक्टिवली कितनी कैपिटल कितने मंथ्स के लिए रही बिजनेस में. एंड देन उनका प्रोडक्ट करके निकाला फॉर 1 मंथ. लाइक 50,000 3 मंथ्स के लिए रही, तो फॉर 1 मंथ 1,50,000. 55,000 3 मंथ्स के लिए रही है, तो फॉर 1 मंथ 1,65,000. इस तरीके से सबको 1 मंथ के लिए नंबर ऑफ मंथ से कैलकुलेट करके निकाल लिया. एंड 6,40,000 रही फॉर 1 मंथ. अगर डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 6,40,000 डिवाइड बाई 12 करते हैं तो ऑन एन एवरेज पर मंथ कैपिटल पता चल जाएगी. 6,40,000 फॉर 1 मंथ. एंटायरली 12 मंथ के लिए अगर निकालने की कॉन्स्टेंटली 12 मंथ के लिए कितनी रही, तो 6,40,000 डिवाइड बाई 12. और अगर उसी को 1 मंथ के लिए देखेंगे तो 6,40,000. इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, 6,40,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12, क्योंकि ये तो 1 मंथ की कैपिटल है. इन दिस वे आपको पता चल गया कि कैपिटल रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करने. नाउ यू विल ट्राई टू सॉल्व इलस्ट्रेशन 5. हम नेक्स्ट लेक्चर में इलस्ट्रेशन 5 सॉल्व करेंगे. उसके पहले देखेंगे, इलस्ट्रेशन 5 सॉल्व करने के पहले देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करनी है. इट इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एक बार ये कॉन्सेप्ट देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का. एंड देन गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट लाइक 1.9.2 and 1.9.3. एंड देन वी विल सॉल्व फॉर फ्रॉम इलस्ट्रेशन 5 टू इलस्ट्रेशन 8. तब तक के लिए आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं. ट्राई टू सॉल्व इलस्ट्रेशंस बाय योर ओन and keep studying. Believe in yourself. Be motivated. Thank you so much.